میری بیوی بہت ہی کم عمر اور خوبصورت تھی. جو بھی اسے دیکھتا اس کے حسن کی تعریف کیے بنا رہ نہ پاتا. میرے دوست ہر ہفتے کی رات ہمارے گھر گزارتے اور خوب مزہ کرتے. آہستہ آہستہ میرے دوستوں کی میری بیوی سے بڑھتی ہوئی بے تکلفی نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا. میری اپنی بیوی سے جھگڑے ہونے لگے اور پھر ایک ہفتے کی رات میں نے اپنے دوستوں پر بھی شک کا اظہار کر دیا. اسی رات مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی. جب قاتل کا پتہ چلا وہ تو شہزیب کے دوست اتوار کو صبح کا ناشتہ اس کے گھر پر کرتے تھے، اس لیے شہزیب عام دنوں کی طرح اس دن بھی صبح معمول کے مطابق بیدار ہو جاتا تھا. کچن میں شہزیب کی بیوی آئمہ ناشتہ کی تیاری میں مصروف تھی. شہزیب آئمہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. آئمہ بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھی. وہ ایک خوبصورت عورت تھی. اس کی نقش و نگار دلاویز، آنکھیں نیلی، بال گھنے اور چمکدار. وہ جینز پر سفید رنگ کا ٹاپ زیب تن کیے ہوئے تھی. شہزیب نے اسے محویت سے دیکھتے ہوئے سوچا آئمہ کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا. یہ سوچتے ہی اس کا ذہنی سکون چند لمحوں کے لیے درہم برہم ہو گیا. وہ دماغ میں آئے اندیشوں کو جھٹک کر دل کو تسلی دینے لگا کہ آئمہ جیسی حسین عورت کو خود نمائی کا حق پہنچتا ہے. یہ سوال اکثر شہزیب کو پریشان کرتا تھا کہ آخر آئمہ نے اس سے کیوں شادی کی، اس میں اسے کیا خوبی نظر آئی. آئمہ کم عمر، حسین اور تعلیم یافتہ تھی. وہ چاہتی تو اسے شہزیب سے بہتر شوہر مل سکتا تھا. شہزیب آئمہ سے 18 برس بڑا تھا. شادی سے قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بری طرح زخمی ہونے کے بعد اس کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ آ گئی تھی. البتہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور کئی تعمیراتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکا تھا. آئمہ کو دیکھتے ہوئے ایک دم شہزیب کچن کے اندر داخل ہو گیا اور آئمہ کے پاس کھڑے ہو کر آہستگی سے گویا ہوا، آئمہ کیا ضرورت تھی تمہیں خود کو تھکانے کی؟ میں بازار سے کچھ لے آتا. مجھے کوکنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. ویسے بھی بازار کی چیزیں آپ اور آپ کے دوست کہاں پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے کسی پکانے والی کو نہیں رکھا. آئمہ نے پراٹھوں کو ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا. شکریہ، تم میرا بڑا خیال رکھتی ہو. تم میری پہلی اور آخری محبت ہو. شہزیب نے تشکر امیز لہجے میں کہا. بالکل جھوٹ، آپ کی پہلی محبت بزنس ہے، اس کے بعد میں ہوں. آئمہ نے کافی پھینکتے ہوئے کہا. ایسا تو نہ کہو. شہزیب نے احتجاج کیا. تمہارا اندازہ درست نہیں. میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. شادی کے 5 سالوں میں تم مجھے اتنی عزیز ہو گئی ہو کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لمحے باہر کار کا ہارن سنائی دیا تو شہزیب کچن سے نکل کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا. گیٹ چوکیدار نے کھولا اور اس کے تینوں دوست اندر داخل ہو گئے. ان سے رسمی گفتگو کرتے ہوئے شہزیب انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا. وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی باتوں میں مصروف ہو گئے جبکہ ملازمہ ناشتہ لگانے لگی. شہزیب کے دوستوں میں ریان ایک مشہور سرجن تھا. وہ خوبرو اور شادی شدہ تھا. دوسرا دوست عباس شکل سے باروب اور مغرور دکھائی دیتا تھا اور ایک تجارتی ادارے کا بڑا افسر تھا. تیسرا دوست عامر ان تینوں میں سب سے کم عمر خوش شکل نوجوان تھا. وہ ایک اہم ادارے میں ملازمت کر رہا تھا. عامر نے دزدیدہ نظروں سے کچن میں مصروف آئمہ کو دیکھا اور بولا، شہزیب آپ بہت خوش قسمت ہیں. زندگی میں آپ نے جو چاہا پا لیا. ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ میں خوش قسمت ہوں. ایک بات بتاؤ کہ اچانک تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں خوش قسمت ہوں؟ آپ کے شاندار گھر میں جب بھی آتا ہوں مجھے آپ کی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے کبھی یہ بات آپ سے کہی نہیں. مجھے دیکھ لیں، میری معقول تنخواہ ہے مگر مجھے پتا ہے کہ میں کتنی بھی بچت کر لوں تب بھی ساری زندگی اتنی رقم اکٹھا نہیں کر پاؤں گا کہ آپ جیسا شاندار گھر بنا سکوں. تم اب شادی کر ڈالو، ہو سکتا ہے کہ بیوی کے نصیب سے تمہاری قسمت کھل جائے. عباس نے مشورہ دیا. فی الحال تو میں شادی سے دور ہی رہنا چاہوں گا. اب میں ان کی طرح خوش قسمت تو ہوں نہیں کہ دولت کی دیوی کے ساتھ ساتھ حسن کی دیوی بھی مل جائے. آئمہ بھابی جیسی خوبرو بیوی خوش قسمتوں کو ہی ملتی ہیں. عامر تم تعریفوں کے پل باندھنا بند کرو. جن لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہے وہ بھی خاصی خوبصورت ہیں. تمہیں شادی کے لیے ان میں سے کسی کا انتخاب کر لینا چاہیے. آئمہ نے شہزیب کے برابر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. وہ اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان سے شادی کروں. ان کی خوبصورتی آپ کی طرح نیچرل تھوڑی ہے. دوسرے وہ آپ کی طرح لذیذ کھانے نہیں پکا سکتی. جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں.
आमिर ने सताइशी नजरों से आयमा को देखा। हाँ, ये तो है, भाभी के पकाए हुए खानों में जो लज्जत है वही तो हमें यहाँ खींच लाती है। अब्बास ने आमिर की हाँ में हाँ मिलाई। शाहजेब ने मोहब्बत भरी नजरें आयमा पर डाली। इस बात का तो उसे एहसास था कि उसके दोस्त आयमा को पसंद करते हैं। जब शाहजेब के दोस्त आयमा की तारीफें करते तो उसे बहुत आसूदगी का एहसास होता। वो उनकी तारीफों से चिढ़ने की बजाय खुश होता। सबने नाश्ता शुरू कर दिया था। आमिर को तेजी से खाते देखकर शाहजेब ने मजाक में कहा, मैं आइंदा तुमसे खाने की कीमत लिया करूंगा। ले लीजिएगा, मैंने कब इनकार किया है, मगर ये सोच ले मैं रोज खाने के टाइम पर मौजूद होऊंगा। वैसे भी हर इतवार हम लोगों के यहाँ मौजूद होने से आपका घर होटल बन जाता है। आयमा भाभी सोचती होंगी हमारे यहाँ आने से उनका वीकेंड गारत हो जाता है। हरगिज नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। हफ्ते भर शाहजेब के चेहरे पर यह सोचकर नागवारी फैल गई कि मेरी बीवी मेरे साथ रहते हुए बोर हो जाती है। तुम कहाँ गुम हो गए हो? डॉक्टर रेयान ने उसकी कैफियत महसूस करते हुए पूछा। कहीं नहीं, अपनी कैफियत छुपाते हुए शाहजेब प्लेट में रखा सैंडविच खाने लगा। वो लोग नाश्ते से फारिग हो गए तो स्नोकर खेलने लगे। इस दौरान आयमा दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ हो गई। शाहजेब की आयमा से पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इन दिनों वो मॉडलिंग कर रही थी, मगर अब तक कोई खास कामयाबी इसका मुकद्दर नहीं बनी थी। पहली मुलाकात में शाहजेब को पुरकशिश लगने के बावजूद आयमा में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी, लिहाजा जल्द वो शाहजेब के जहन से उतर गई। एक दिन अचानक आयमा खुद ही शाहजेब से मुलाकात के लिए उसके दफ्तर पहुंच गई और बेतकल्लुफी से पूछने लगी, मैंने आपको अपना फोन नंबर दिया था मगर आपने मुझे फोन नहीं किया। आखिर खुद ही आपसे मुलाकात के लिए चली आई। आपको मेरा यूं आना नागवार तो नहीं गुजरा? हरगिज नहीं, मुझे तो आपके आने से बेहद खुशी महसूस हो रही है। शाहजेब ने साफ गोई से जवाब दिया। फिर वो मजीद गोया हुआ, आप चाय पियेंगी या कॉफी? नहीं शुक्रिया, ये वक्त तो लंच का है, वो बेसाख्ता बोली। शाहजेब एकदम खसिया गया। उसने लंच का ऑर्डर दे डाला। आयमा वो पहली लड़की थी जिससे शाहजेब को मोहब्बत होने लगी थी। इससे पहले भी कई लड़कियों ने शाहजेब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर शाहजेब खुद पीछे हट गया था। लड़कियों के मामले में इसका रवैया बहुत मोहतात था। बिल आखिर एक दिन शाहजेब ने उसे प्रपोज कर दिया। अगरचे शाहजेब को खदशा था कि कहीं वो उसके प्रपोजल को ठुकरा ना दे, मगर ये खदशा बेबुनियाद साबित हुआ और आयमा ने फौरन उसकी ऑफर कबूल कर ली। वो अपने घर वालों से बहुत बदजन थी। उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि अभी आयमा शादी करे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। शाहजेब ने निहायत सादगी से आयमा से शादी कर ली थी। आयमा के घर वालों ने शादी में शिरकत नहीं की, मगर शाहजेब को उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उस मोहब्बत पा ली थी और वो बहुत खुश था। आयमा हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। शाहजेब की ख्वाहिश को मुकद्दम रखते हुए आयमा ने मॉडलिंग की दुनिया को खैराबाद कह दिया था। शाहजेब को ये एहसास कि वो अकेला नहीं है बहुत तकवीत देता था। शादी के बाद आयमा ने शाहजेब की खुशी के लिए कुकिंग सीखी थी। वो खुद को घर के कामों में मसरूफ रखती थी। शाहजेब की आयमा से मोहब्बत गुजरते वक्त के साथ मजीद बढ़ती जा रही थी। वो शादी के शुरू दिनों की तरह अब भी कभी कभी रात गए नींद से बेदार होता तो सोई हुई आयमा को देखता रहता। उस लम्हे उसे खुद पर फख्र महसूस होता कि वो इंतहाई हसीन औरत का शौहर है। हफ्ते का दिन था। आमिर शाम 5 बजे शाहजेब के घर पहुंचा तो उसे पूरा यकीन था कि शाहजेब घर पर मौजूद नहीं होगा। वो अमूमन रात 8 बजे के बाद घर लौटता था। चौकीदार ने आमिर को देखते ही गेट खोल दिया। मुलाजमा उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर इत्ला देने चली गई। वक्त गुजारी के लिए आमिर ड्राइंग रूम में लगी पेंटिंग्स को देखने लगा। ये पेंटिंग्स आयमा ने चंद दिन पहले लगाई थी। आयमा ने ड्राइंग रूम की नए सिरे से तज़ीनो आराइश की थी जो उसकी आला ज़ौक़ का नमूना थी। आमिर ने पेंटिंग्स देखने के बाद सरसरी नजर फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस पर डाली तो दिल में उसे सराहे बगैर न रह सका। कुछ देर बाद आयमा चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरे शाहजेब के साथ अंदर दाखिल हुई। आमिर ने एक नजर आयमा पर डाली और उसके सलाम का जवाब देते हुए शाहजेब की जानी मुतवज्जा हो गया। उसके दिल में उदासी दर आई थी। शाहजेब की मौजूदगी ने मुलाकात का सारा हुस्न गारत कर दिया था। आयमा जिस अंदाज से तैयार थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो आमिर के आने के सबब निकसिक सी तैयार हुई है और उसे भी अपने शोहर की बेवक्त आमद नागवार गुजरी है। शाहजेब से शादी के कुछ अरसे बाद ही आयमा की कैफियत इस सरकश हिरनी जैसी हो गई थी जो रस्सियां तुड़वाकर भाग जाना चाहती थी। शाहजेब आमिर से कारोबार के मुतालिक गुफ्तगू करने में मसरूफ था। बातें का वो सरसरी निगाह आयमा पर भी डाल लेता था जो बड़े गौर से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी।
इस दौरान मुलाजमा ने समी नामी शख्स की आमद के बारे में शाहजेब को बताया। समी भी शाहजेब की तरह कारोबारी आदमी था। शाहजेब ने आमिर से समी का तारुफ करवाया। शाहजेब यकीनन आपको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होगा। समी ने रस्मी बातों के बाद हंसते हुए पूछा। हाँ, मेरे पास आजकल इसके अलावा कोई मौजू नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूं, शाहजेब ने एतराफ किया। हम बिजनेसमैन के पास इसके अलावा बात करने के लिए कुछ होता भी नहीं है। खुद को हम इतना मसरूफ कर लेते हैं कि फैमिली के लिए वक्त नहीं मिलता। मगर मैं यहाँ शाहजेब से कारोबारी गुफ्तगू करने नहीं बल्कि आयमा के हाथ की बनी कॉफी पीने आया हूँ। समी ने साइशी नजरों से आयमा को देखते हुए बात मुकम्मल की। उसकी नजरों में आयमा के लिए जो चाहत थी उसे आमिर की घाघ नजरों ने महसूस कर लिया था। आयमा उठकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद वो मुलाजमा के साथ ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुई और कॉफी के साथ करने लगी। कॉफी पीते ही आमिर ने जाने की इजाजत चाही। उसे समी की मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। वो जब से आया था हविस ज़दा नजरों से आयमा को देख रहा था। मैं चलता हूँ, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। आमिर ने ये कहते हुए उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। आमिर, तुम मुझे तारिक रोड ड्रॉप कर दोगे? मुझे ड्रेस डिजाइनर से मिलना है। आयमा बोली। फिर शाहजेब से मुखातिब हुई। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, उसे आज जल्दी जाना है, मुझे वापसी में देर हो जाएगी। आयमा के जवाब पर शाहजेब ने घूरने पर इत्तफाक किया। जरा देर बाद आयमा आमिर के साथ कार में बैठी बात कर रही थी। शाहजेब ने आज बेवक्त आकर मेरा मूड खराब कर दिया। अजीब शख्स है, मुझे तो उससे वहशत होती है। आजकल उसे औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। जब देखो यही कहता है कि इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस होना चाहिए। तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? आमिर ने पूछा। नहीं, इस तरह शाहजेब का मुझसे ताल्लुक और मजबूत हो जाएगा। समी तुम्हें बड़ी दुज़देदा नजरों से देख रहा था। आमिर के दिल की बात जुबान पर आ गई। कई मर्द मुझ पर अब भी फिदा हैं। अगर मुझे शाहजेब की दौलत से मोहब्बत नहीं होती तो मैं उनमें से किसी का हाथ थाम लेती। शाहजेब मुझसे मोहब्बत का दावा करता है मगर बेहद शक्की है। एक तरफ तो चाहता है कि लोग उसके ज़ौक़ की दाद दें कि उसने इंतहाई हसीन बीवी का इंतखाब किया है, तो दूसरी तरफ मुझ पर इल्जाम लगाता है कि मेरी नजर इल्तफात के बाइस उसके दोस्त मेरी जात में दिलचस्पी लेते हैं। उसकी जुबान शादी के शुरू दिनों से ही मेरे खिलाफ जहर अफशाई करती रही है। वो खुद ही अपनी शक्की तबीयत के बाइस नुकसान उठाएगा। मुझे कौन सा उनसे उनसियत है? मैं तो माली मफाद की खातिर इस ताल्लुक को निभा रही हूँ। बहुत साफ गो हो तुम। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि दौलत के आगे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। बहुत चाहा मैंने कि तुमसे दिली रिश्ता ना जोड़ूं, मगर तुम्हारी सूरत में कोई जादू है जो मुझे तुम्हारी जानिब खींचता है। आमिर की कार मार्केट के नजदीक पहुंच चुकी थी। यही रोक दो, आयमा ने हाथ से इशारा करके कहा। तुम साथ नहीं चलोगे? उतरने से कबल उसने पूछा तो आमिर ने नफी में सर हिलाया। मुझे दोस्त के पास जाना है। ओके। वो कार का दरवाजा खोलते हुए उतर गई। टाइम देखा है तुमने? रात के 10 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी घर इसलिए आया था कि कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं और तुम ड्रेस डिजाइनर के बहाने ऐसे गायब हुई कि अब लौट रही हो। शाहजेब ने आयमा को देखते ही नागवारी से कहा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम लौटो तो कहीं घूमने चले, मगर तुमने इतनी देर कर दी। मार्केट में देर सवेर हो ही जाती है, मैं खाना लगवाती हूँ। वो शॉपिंग बैग्स एक तरफ रखते हुए बेडरूम से निकलने को थी कि शाहजेब ने उसे रोककर पास बिठा लिया। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम खींची खींची से रहने लगी हो। आज मुझे तुम्हारा आमिर के साथ जाना बिल्कुल नहीं भाया। तुम कुछ देर इंतजार कर, तुम्हें मार्केट ले जाता। मुझे तुम्हारा आमिर के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं, आइंदा ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर आयमा के चेहरे पर बरहमी के आसार फैल गए। वो तेज लहजे में बोली, आखिर आप मेरे मामले में इतने कदामत पसंद क्यों हैं? जिस क्लास से आपका ताल्लुक है वहाँ ऐसी बातें मायूब नहीं समझी जाती। आप मुझसे इस किस्म की पाबंदियों पर अमल करने की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। मैं तो आपकी खोज में नहीं रहती कि आप किन लड़कियों से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। शट अप। तुम ये खूब जानती हो कि मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। मुझे बखूबी पता था कि मुझसे दोस्ती करने वाली को मुझसे नहीं मेरी दौलत से दिलचस्पी होगी। मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक चलो। आप चाहते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दूं? मुझे भी अपनी मर्जी से जीने का हक हासिल है। मैं जिस तरह की आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ इसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आयमा के मुंह से इन अल्फाज के अदा होते ही शाहजेब को वसवसों और अंदेशों ने घेर लिया। उसने खुद पर काबू रखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? ये मुझे नहीं मालूम।
आयमा स्पार्ट लहजे में बोली। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा मोहब्बत का दावा झूठा था। तुम क्या मुझसे तलाक लेना चाहती हो? शाहजेब ने पूछा। उसे अब गुस्सा आने लगा। नहीं, मैं कभी आपसे तलाक नहीं लेना चाहूंगी। मेरे मामले में आप जिस इंतहा पसंदी का मुजाहिरा करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। अगर मैं किसी से बेतकल्लुफी से बातें कर लेती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? ये कहते हुए आयमा का मूड कदरे बेहतर हो गया था, मगर शाहजेब का मूड ऑफ हो चुका था। 3 रोज बाद शाहजेब रात 8 बजे ऑफिस से घर पहुंचा तो मुलाजमा की जुबानी उसे मालूम हुआ कि आयमा शाम से कहीं गई हुई है। आयमा ने जाने से कबल उसे फोन करके बताने की जरूरत महसूस नहीं की थी। शाहजेब के आने के तकरीबन आधा घंटे बाद आयमा घर लौट आई। तुम मुझे बताए बगैर कहाँ गई थी? जाने से कबल तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। शाहजेब ने आते ही शिकवा किया। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। आयमा ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए जवाब दिया। कौन सी फ्रेंड से मिलने गई थी? आपको हुआ क्या है? मेरे आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं फरियाल के घर गई थी, कई माह हो गए थे उसे मिले हुए। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम फरियाल से मेल जोल नहीं रखोगी, इसके बावजूद तुम उसके घर पहुंच गई। मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं। शोबिस की दुनिया में वो कोई खास नाम नहीं कमा सकी, अलबत्ता अपनी शादियों के हवाले से उसने शोहरत पाली है। आप फरियाल का जिक्र इन अल्फाज में ना ही करें तो बेहतर है। 3 शादियां उसकी नाकाम हुई हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि वो कसूरवार हो। कसूर उन मर्दों का भी हो सकता है जिनसे उसने शादी की थी। आप तो बिला वजह खौफजदा हो रहे हैं कि फरियाल के साथ दोस्ती निभाते हुए कहीं मैं भी उसकी जैसी न हो जाऊं। आपके वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं। वो कंधे उचकाती हुई वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। शाहजेब का दिल चाह रहा था कि वो अलीना से साफ कह दे कि आइंदा उसने उसकी मर्जी के खिलाफ किसी से भी मिलने की कोशिश की तो अच्छा ना होगा, मगर वो कह ना सका। आयमा ने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई, मगर डिनर करते हुए उसने गुफ्तगू के दौरान आयमा से कह ही डाला, आयमा, मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई दोस्त आए तो तुम्हें उसे कंपनी देने की कतन जरूरत नहीं है, ये मेरा हुक्म है। शाहजेब ने सख्त लहजे में तंबी की। आयमा के लब खुले जिसे उसने फौरन भींच लिया। वो शाहजेब से बहस के मूड में नहीं थी। हफ्ते के दिन शाहजेब के दोस्तों में से रेयान, अब्बास और आमिर प्रोग्राम के मुताबिक पहुंच गए। दोपहर तक समी भी आ गया था। उन लोगों ने दोपहर का खाना खाया और समंदर के किनारे तफरी के लिए चले गए। वहां से लौटे तो रात हो चुकी थी। उनके लौटने के कुछ देर बाद आयमा ने मुलाजमा के साथ खाना लगा दिया। खाने के दौरान आयमा और शाहजेब के दोस्तों के दरमियान हंसी मजाक चलता रहा। खाने से फारिग होकर वो सब डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर जा बैठे। अचानक शाहजेब अपना रिवॉल्वर ले आया और सोफे पर आयमा के बराबर बैठते हुए उसे लहराने लगा। दोस्तों, ये मेरा अपना खिलौना। जौहर जहनी तौर पर अब भी बच्चे हैं। उन्हें पिस्तौल और समंदर के पानी में नहाना बेहद पसंद है। आयमा ने तंजिया लहजे में कहा। इस लिहाज से तो हम भी बचे हुए, क्योंकि हमें भी ये चीजें पसंद है, अब्बास ने हंसते हुए कहा। शाहजेब, आप ये खिलौना किसी महफूज जगह रख दें। भरे हुए रिवॉल्वर से खेलना खतरनाक होता है। आमिर की इस तंबी पर शाहजेब मुस्कुरा दिया। दोस्तों, सुन रहे हो कि आमिर क्या कह रहा है? ये खुद खतरनाक खेल खेलता है मगर रिवॉल्वर से डरता है। शाहजेब की बात सुनते ही कमरे में सकूत तारी हो गया। शाहजेब के दोस्त उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे। शाहजेब खुद भी अपना मूड समझने से कासिर था कि उसके अंदर बर्दाश्त की हद क्यों खत्म हो गई है। उन लोगों की खामोशी से शाहजेब ने ये नतीजा अखज किया कि उसके दोस्त उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर खौफजदा हैं। तुम लोग पिस्तौल देखकर इसलिए खौफजदा होना कि कहीं मेरे अंदर का लावा फट पड़े और मैं तुम में से किसी को कत्ल न कर बैठूं। मेरी बीवी जो मेरी मताए हयात है, उसको मुझसे जो छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तुम लोगों के ज़मीर मुतमईन है तो तुम्हें कतन डरने की जरूरत नहीं है। शाहजेब एकदम बेसरोपा हंसी हंसने लगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मेरा ख्याल है हमें रात यहाँ कयाम करने की बजाय चलना चाहिए। डॉक्टर रेयान संजीदा लहजे में बोले। नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे आज की रात। प्रोग्राम के मुताबिक तुम लोग यहीं ठहरोगे। वो तो ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि सारे दिन की थकान के बायस अब तुम हमारे साथ ताश की बाजी नहीं लगा पाओगे। बेहतर होगा कि जाकर आराम कर लो। हम भी दिन भर के थके हुए हैं, इसलिए आराम करने जा रहे हैं। आओ दोस्तों चलें, डॉक्टर रेयान ने कहा। तुम जाकर आराम करो, मैं और समी हवाखोरी के लिए छत पर जा रहे हैं। अब्बास बोला। डॉक्टर रेयान रुके बगैर गेस्ट रूम में चले गए। समी और अब्बास भी निकल गए। आमिर गेस्ट रूम से मुल्हक कमरे में चला गया। वो ऑफिस की फाइल खोलकर बैठ गया। फाइल पर काम करना बेहद जरूरी था, इसलिए वो इन्हें अपने साथ लाया था।
शाहजेब अपने बेडरूम में जाकर सिगरेट पीने लगा। पीछे चली आई। वो सख्त गुस्से में थी। आपका दिमाग ठीक है? किस तरह की फजूल गुफ्तगू अभी आपने की थी? इस तरह की गुफ्तगू से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आयमा के पूछने पर शाहजेब ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, मैंने अपने दोस्तों की तुम में दिलचस्पी देखकर फैसला किया है कि अब उनका वजूद घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। तुम्हारे ख्याल में हमें कहाँ सुकूनत इख्तियार करनी चाहिए? आप खुद ही फैसला कर लें कि आपने कहाँ सेटल होना है। दिन ब दिन आपकी तबीयत में शक्कीपन बढ़ता जा रहा है। मैं किचन में जा रही हूँ। आयमा बहस में उलझे बगैर चली गई। शाहजेब तन्हा बैठा सिगरेट फूंकने लगा। कमरे की फिजा में गहरा सकूत तारी था। कुछ देर बाद वो उकताकर बेडरूम से निकला और स्टडी रूम की जानिब चल दिया। जब वो डिप्रेशन का शिकार होता था तो उसे वहीं पनाह मिलती थी। वहाँ ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद थी जिन्हें देखकर उसे सुकून मिलता था। इनमें पिस्तौलों का जखीरा, तस्वीरों के एल्बम और गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली चीजें शामिल थी। इन चीजों की मलकियत में उसने आयमा को भी किया था। स्टडी रूम में दाखिल होकर शाहजेब ने दरवाजा बंद कर लिया और बंद दरवाजे से टिक कर सताने लगा। उसने लाइट भी ऑन नहीं की थी क्योंकि वो मुकम्मल तन्हाई चाहता था। उसके जहन में ख्याल आया कि वो जब अपने दोस्तों के किरदार पर शक करता है तो उसे उनसे दोस्ती पालने की क्या जरूरत है। साथ ही दिल से सदा उठी कि उसे जब अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है तो उसे तलाक देकर फारिग कर देना चाहिए। उसने दिल की बात को फौरन मुस्तरद कर दिया। चंद महीनों की बात थी। उसने आयमा के साथ बैरून मुल्क सेटल हो जाना था। उसके दिमाग पर जो थकावट तारी थी उसकी वजह से उसे तारीकी भी मुतहरिक महसूस हो रही थी। शाहजेब ने आंखें बंद कर ली। अचानक एक हाथ तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर जम गया। शाहजेब का सर जोर से दरवाजे के साथ लग गया। वो हाथ कोहनियों तक ऊनी कपड़े की आस्तीन में छुपा हुआ था। शाहजेब की हलक पर दबाव बढ़ रहा था। अचानक शाहजेब के तमाम हवास बेदार हो गए। उसने मुंह खोलकर हमला आवर के हाथ में दांत गाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत हमला आवर के हाथ तक नहीं पहुंच सके। महज उसकी आस्तीन चबा कर रह गए। उसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी महसूस हो रही थी। उसे एहसास हो गया था कि जिंदगी और मौत के बीच बहुत कम फासला रह गया है। ये ख्याल आते ही उसका जहन मुतहरिक हो गया। उसका दायां हाथ तेजी से जेब के अंदर गया और उसने पिस्तौल निकाल लिया। हमला आवर ने उसका हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। शाहजेब की गिरफ्त रिवॉल्वर पर मजबूत हो गई। उसे महसूस हुआ कि हमला आवर रिवॉल्वर छीनना नहीं चाहता बल्कि उसका हाथ मरोड़कर रिवॉल्वर का रुख तब्दील करना चाहता है। शाहजेब की टांगे दिन भर की थकान के बाइस जिस्म का बोझ बदिक्कत उठा रही थी। वो गिरने को था कि ट्राइगर पर दबाव बढ़ गया और गोली शाहजेब के कंधे के ऊपर से गुजरकर दीवार में पैवस्त हो गई। फायर की आवाज के साथ ही शाहजेब धड़म से फर्श पर गिर पड़ा। वो सख्त खौफजदा था। वो अभी मरना नहीं चाहता था। शाहजेब को बाखूबी मालूम था कि हमला आवर उससे उसकी अजीज तरीन चीज छीनना चाहता है जो उसकी जिंदगी में किसी और को नहीं मिल सकती। उसने बड़ी हमला आवर के ऊनी कपड़े के धागों को निकाला और जेरे लब बुड़बुड़ाया, आयमा बेवा नहीं होगी। उसका जहन तेजी से हमला आवर की जानिब से की गई कार्रवाई के बारे में सोच रहा था। एकदम उसे दर्द का शदीद एहसास हुआ। शाहजेब की टांग में गिरने के बाइस फ्रैक्चर हो गया था। उसी वक्त स्टडी रूम की लाइट ऑन हुई और शाहजेब के कानों में आवाजें आने लगी। शाहजेब, ये सब कैसे हुआ? तो मेरी आवाज सुन रहे हो? डॉक्टर रेयान ने पूछा तो शाहजेब का सर हिल गया। फिर एक दूसरी आवाज उभरी। बोलने वाले का चेहरा शाहजेब के सामने नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि ये आवाज आमिर की है। मैंने पहले ही मना किया था कि रिवॉल्वर से ना खेलें। अखबारात में आए दिन ऐसे हादसात की खबरें छपती रहती हैं। शाहजेब को ये जुमला सुनते ही आग लग गई। उसने आहिस्ता से कहा, ये हादसा नहीं था बल्कि किसी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। शाहजेब, ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर रेयान ने गैर यकीनी लहजे में पूछा। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की थी। शाहजेब ने पूरे वाकये की तफसील बता डाली। चंद लम्हों के लिए गहरा सकूत छा गया। फिर सब लोग अचानक एक दूसरे से बातें करने लगे। वो वारदात के मुतालिक कयास आराइयां कर रहे थे। शुमाइल ने आयमा के मुतफक्किर और परेशान चेहरे पर नजरें जमा दी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो बेहद गमगीन दिखाई दे रही थी। अब्बास फोन करके एम्बुलेंस मंगवा रहा था। शाहजेब सोचने लगा, क्या आयमा को मालूम है कि इस वारदात की मुहर्रिक वही है? हमला आवर मुझे हलाक करके उसे हासिल करना चाहता था। मेरी मौत से हमला आवर यही एक फायदा हासिल कर सकता था और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमला आवर ने हमले के लिए आज की रात मुंतखब की थी। मोबाइल ऑफ करते हुए अब्बास ने कहा, यकीनन वो कोई चोर था, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने फोन कर दिया है, एम्बुलेंस रवाना हो गई है, तुम फिक्र ना करो। फ्रैक्चर खतरनाक जरूर है लेकिन अस्पताल पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा।
کیا کمرے میں ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ چوری کی واردات معلوم ہو؟ شاہزیب نے مضبوط کیا۔ عباس نے سر گھما کے کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ نہیں تو؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ یہ چوری کی واردات نہیں ہے، کسی شخص نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہی موجود ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ عباس کے کہنے پر شاہزیب نے فوراً منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو شاہزیب، بہت افسوس ہوا مجھے تمہاری بات سے۔ تم سمجھتے ہو ہم چاروں دوستوں سے کسی ایک نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ڈاکٹر ریان نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل، شاہزیب نے ان کی بات سن کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم جانتے تھے کہ میرے پاس بھرا ہوا ریوالور ہے اور میں اسے رکھنے یہاں آؤں گا۔ تم میں سے کوئی ایک یہاں چھپ کر پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ یہ سنگین واردات محض ایک حادثہ نظر آئے۔ اگر میں مر جاتا تو واقعی اسے ایک حادثہ قرار دے دیا جاتا۔ شاہزیب بدقت فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ لیکن شاہزیب، تم ہی سوچو کہ تمہیں کوئی کیوں ہلاک کرے گا؟ تم سے کسی کی دشمنی نہیں ہے، ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں اور تم لوگ مجھ سے محبت نہیں حسد کرتے ہو۔ تم سب میری خوبصورت اور سلیقہ مند بیوی سے محبت کرتے ہو اور اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم سب نے مجھے ہلاک کرنا چاہا ہوگا، مگر تم میں سے صرف ایک شخص جرأت مند نکلا لیکن ناکام رہا۔ تم بھی تو آئمہ سے محبت کرتے ہو، کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، سمی چلایا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو بتاؤ کہ تمہاری اپنی بیوی سے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ تم سے روٹھ کر میکے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ شاہزیب نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سمی نے ایک گہری سانس لی۔ یہ تم نے بے حد ذاتی سوال کیا ہے۔ میں یہ اعتراف کروں گا کہ آج کل میرے اپنی بیوی سے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، مگر اس رنجش کی وجہ آئمہ بھابی نہیں ہے۔ میں یہاں تم سے ملنے آتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو سمی، شاہزیب غصے میں بولا۔ میں تم سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ تمہاری حالت اس قابل نہیں کہ تم سے بحث کی جائے۔ بلا وجہ تم مجھے ملزم قرار دے رہے ہو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے ایسا کچھ کیا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ تم مجرم ہو، یہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی مجرم ہو سکتا ہے۔ ویسے عباس، تم بھی دل پھینک واقع ہوئے ہو۔ بند کرو بکواس۔ میں فطرتاً حسن پرست ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے دوست کی بیوی کو گھیرنے کی کوشش کروں۔ میری فیملی لائف اچھی گزر رہی ہے۔ عباس کی آواز غیر معمولی بلند تھی، اس کے لہجے سے اعصابی تناؤ ظاہر ہو رہا تھا۔ اب بند بھی کریں یہ فضول باتیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کی فضول سوچ پر پورا اترتا ہو۔ آپ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ سے بحث کی جائے۔ فی الحال آپ کو علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ عامر کے تیزی سے کہنے پر شاہزیب اسے غصے سے گھورنے لگا۔ عامر، اگر کوئی شخص تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا تو کیا تم یہ معاملہ اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتے؟ میں نظر انداز کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے صبر سے کام لے۔ پولیس ہے نا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ بحیثیت دوست میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ۔ شاہزیب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں مجرم کو ثبوت مٹانے کا موقع نہیں دوں گا۔ میرا ذہن پوری طرح سے بیدار ہے۔ میرے پاس ایک شہادت موجود ہے جس کی مدد سے مجرم کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ عامر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ مجرم جو سویٹر پہنے ہوئے تھا اس کے دھاگوں کی مدد سے شناخت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے جب اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی تھی تو اس کی آستین میرے منہ میں آ گئی تھی۔ آستین کے چند دھاگے اب بھی میرے ہاتھ میں ہیں۔ شاہزیب نے اپنی بند مٹھی کھول دی۔ ڈاکٹر ریان نے بڑی احتیاط سے دھاگے لیے اور روشنی میں دیکھنے لگا۔ عامر بولا، میں، سمی اور عباس اپنے اپنے سویٹر پہنے ہوئے ہیں، مگر ڈاکٹر آپ کا سویٹر کہاں ہے؟ میرے کمرے میں، ڈاکٹر ریان نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا لے آؤں؟ عامر نے پوچھا۔ ہاں ضرور۔ فاخر اسٹڈی روم سے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں ڈاکٹر ریان آرام کر رہے تھے۔ تمام لوگ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ شاہزیب چاہتا تھا کہ مجرم جلد بے نقاب ہو جائے۔ عامر ڈاکٹر ریان کا سویٹر لے آیا۔ اس کا رنگ کسی بھی طرح ان دھاگوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا جو ڈاکٹر ریان کے ہاتھ میں تھا۔ شاہزیب دیکھ لو، ہم میں سے کسی کے پاس آسمانی رنگ کا سویٹر نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہارا مجرم نہیں ہے۔ اس سے تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا۔ باقی کا کام پولیس کرے گی، اس لیے تم اپنا ذہن مت الجھاؤ۔ تمہیں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں پین کلر دے دیتا ہوں۔ پتہ نہیں ایمبولینس کہاں رہ گئی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ریان فکر مندی سے کہتے ہوئے اپنا فرسٹ ایڈ باکس لینے جانے لگے۔ اسے جانے مت دو آئمہ، یہ مجھے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دے گا۔ میرے دوست میرے دشمن ہیں، یہ ہر شہادت ضائع کر دیں گے۔
आयमा जो शाहजेब का हाथ थामे बैठी थी फौरन बोली, शाहजेब आपको इस वक्त दवा के साथ आराम की जरूरत है। डॉक्टर रेयान आपके दोस्त होने के अलावा एक जिम्मेदार मुआलिज भी हैं। आपको तकलीफ में देखकर पेन किलर दे रहे हैं। इनका मकसद आपकी जान लेना नहीं है। आयमा तुम इन लोगों को नहीं जानती, अज़ाइम पूरे नहीं होने दूंगा। इनमें मौजूद मुजरिम बच निकला तो वो दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। प्लीज शाहजेब खामोश हो जाएं, आप गलत सोच रहे हैं। उसी वक्त आमिर ने किसी ख्याल के तहत शाहजेब से पूछा, आपके पास भी तो एक आसमानी स्वेटर था, वो कहाँ है? शाहजेब ने इस सवाल की अहमियत को समझते हुए जवाब दिया, मेरा स्वेटर तो मेरे बेडरूम की अलमारी में है। उसी वक्त डॉक्टर रेयान स्टडी रूम में लौटे, उनके हाथ में इंजेक्शन था। ठहर जाओ, पहले इस मसले को हल हो जाने दो, फिर ये काम भी कर लेना। शाहजेब ने हाथ के इशारे से उन्हें मना करते हुए कहा। कमरे की फिजा में गहरा सुकूत छा गया। सब अपनी जगह साकित खड़े थे। अलबत्ता आमिर रुके बगैर स्वेटर उठाने जा चुका था, जो बेडरूम की अलमारी की बजाय स्टडी रूम के कोने में पड़ा था, और इत्तफाक से आमिर की नजर उस पर पड़ गई थी। आमिर ने स्वेटर उठाया और डॉक्टर रेयान के पास मौजूद ऊनी धागे से मिलाया। ये धागे शाहजेब के स्वेटर से मुताबिकत रखते हैं। आमिर की आवाज गूंजी, डॉक्टर आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर रेयान ने जवाब दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि समी बोलते बोलते रुक गया तो अब्बास ने जुमला मुकम्मल किया, यही कि मुजरिम शाहजेब पर हमला करते वक्त उसका स्वेटर पहने हुए था। लेकिन क्यों? आमिर ने जवाब दिया, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ। मुमकिन है कि शाहजेब किसी गलतफहमी का शिकार हो, अब्बास ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उस लम्हे शाहजेब पर इस सवाल का जवाब मुनकशिफ हो गया। उसके लिए अब मुजरिम को बेनकाब करना बेहद जरूरी हो गया था। उसका दिमाग मुकम्मल यकसोई से मामले के हर पहलू पर गौर कर रहा था। उसने मुजरिम को पहचान लिया था। वो सोचते हुए गोया हुआ, मुजरिम ने मुझ पर हमला करने के लिए मेरा ही स्वेटर पहना। इस हरकत से उसका मकसद ये था कि अगर वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सके तो मैं भी उसे शनाख्त ना कर सकूं और वो बाआसानी मुझ पर दोबारा हमला करके मेरा किस्सा तमाम कर दे। मैं ये बात पहले ही जान चुका था कि मुझ पर हमला करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है, मगर मेरा दिल ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस मकान में सिर्फ एक औरत थी, आयमा, मेरी बीवी, जिसे मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। मेरा दिल इस हकीकत को झुटला रहा था कि आयमा इस हद तक गिर सकती है कि वो मुझे कत्ल करने का इरादा कर लेगी। आयमा मेरा स्वेटर पहनकर ये साबित करना चाहती थी कि हमला आवर मर्द है। आयमा की आंखें खौफ से फैल गई। वो फौरन पूछ बैठी, मुझे आपको हलाक करने से क्या हासिल था? बताता हूँ, इत्मीनान रखो, कोई मुजरिम जुर्म बेवजह नहीं करता। मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने अपने दोस्तों के मुतालिक गलत राय कायम की। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ और माफी चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग इसे पसंद नहीं करते, पसंद करना अलग बात है, लेकिन तुम्हारे जहन में इसको मुझसे छीनने का ख्याल कभी नहीं आया होगा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं दोस्तों से मुतालिक बदगुमानी को अपने दिल में जगह देता रहा, ये सोचे बगैर कि आयमा भी तुम में से किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती है, वो भी दिल के हाथों मजबूर हो सकती है, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत इस काबिल नहीं कि कोई औरत मुझसे मोहब्बत करे। मुझे पूरा यकीन है आयमा तुम मोहब्बत करती हो। तुम हंस हंस कर उसकी दर्जनों मजबूरियों का जिक्र करती थी। उस वक्त तुम्हारी हंसी खोखली होती थी। तुम आमिर को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशों में लगी रही, लेकिन आमिर उम्र में मुझसे छोटा होने के बावजूद मेरा अच्छा दोस्त है। वो तुम्हारे साथ दिल लगी जरूर कर सकता है, मगर ये कभी नहीं सोच सकता कि तुम्हें बेहैसियत बीवी की अपनी जिंदगी में शामिल करे। आज जब मैंने ये ऐलान किया कि हम बहुत जल्द बाहर सेटल हो जाएंगे और आइंदा मेरा कोई दोस्त यहाँ नहीं आएगा, तो तुम परेशान हो गई कि अब तुम्हारा इश्क परवान नहीं चढ़ सकेगा। गुस्से के आलम में तुमने सोचा कि अगर मैं दरमियान से हटा दिया जाऊं तो तुम आजाद हो जाओगी और मेरी सारी दौलत तुम्हारी मलकियत हो जाएगी। खूबसूरत तो तुम हो, मेरी मौत के बाद तुम एक सोगवार बेवा बन जाती जिसे हमदर्दी की जरूरत थी। तुम बाआसानी आमिर को तैयार कर लेती कि वो तुमसे शादी कर ले। तुम्हारे बेवा होने के बाद आमिर का ज़मीर भी अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत करने पर मुलामत ना करता। बहुत हो गई फजूल बातें, बंद करो ये बकवास, तुम्हारा दिमाग बहुत हो गई फजूल बातें, बंद करो ये बकवास, तुम्हारा दिमाग चल गया है। आयमा पूरी कुव्वत से चीखी और अपने हाथ को शाहजेब की गिरफ्त से आजाद कर लिया। रेयान, शाहजेब ने आयमा को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैंने हमला आवर के हाथ पर काटने की कोशिश भी की थी। तुम आयमा का दायां हाथ देखो, यकीनन उस पर दांतों के निशान मौजूद होंगे। शाहजेब ने ठोस लहजे में अपनी बात मुकम्मल की, हालांकि उसे दांतों के निशानात के वहां मौजूद होने की तवक्को नहीं थी। शाहजेब का वार कारी गया। आयमा एकदम बौखला गई। वो नहीं कहते हुए जोर से चीखी और खड़ी होकर पीछे हटने लगी। वो दाएं हाथ को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये सबूत शाहजेब और उसके दोस्तों के लिए काफी था।
آئمہ تم میری قاتل ہو، جیل جانے کی تیاری کرو۔ شاہزیب نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو وہ یکدم ہنسنے لگی۔ آپ کی یہ آرزو پوری نہیں ہوگی، آپ مرے نہیں جو میں آپ کے قتل کے الزام میں جیل میں سڑوں گی۔ البتہ مجھے طلاق دے کر آپ اس آدھی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے جو آپ میرے نام کر چکے ہیں۔ شاہزیب کو اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس سے تعلق جوڑے رکھا جائے۔ دل برداشتہ ہو کر شاہزیب نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے اپنے پاس پڑا ہوا پستول فوراً اٹھا لیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، وہاں موجود سب لوگ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ ایمبولینس کی آواز کے ساتھ گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ عین اسی وقت شاہزیب کے پستول سے 2 گولیاں نکلی، ایک آئمہ کے دل میں اور دوسری شاہزیب کی کن پٹی پہ پیوست ہو گئی۔ وہ مرنے سے پہلے مطمئن تھا کہ اس کی محبت ناکام ہو گئی تو کیا آئمہ نے بھی شکست زدہ دنیا سے جان دی ہے، وہ بھی کسی اور کی نہیں ہو سکی اور دونوں اپنی جان